আমাদের ছাত্র যুবকদের ভবিষ্যৎ নিয়ে লড়াই রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস দল করছে। কারণ যবে থেকে বিজেপি এসছে, ইতিহাসকে বদলে দেওয়ার চেষ্টা, ইতিহাসকে বিকৃত করে নতুনভাবে ইতিহাস রচনা করার একটা ফোন দিয়ে এরা এঁটেছে। প্রত্যেকটি ইউনিভার্সিটি ভিসি আরএসএস এর নামি দামি নামধারী লোক, যতগুলো তাদের আন্ডারে নিয়োগ হচ্ছে সব আরএসএস এর লোক। শিক্ষায় সেফরানাইজেশন, লোকসভায় যে রিপ্লাই 93,000 স্কুল বন্ধ হয়ে পড়েছে বলে আসার পর 93,000 schools have been completely closed during the tenure of Mr. Modi. That is the reply being furnished in the Lok Sabha. Paper leak, একশো 152টা মোদী সরকার আসার পর 152টি বিভিন্ন স্টেট এবং কেন্দ্রের এজেন্সি দ্বারা পরীক্ষাগুলো যে সংগঠিত হয়, 152 पेपर लीक मतलब 152 पेपर पकड़े गए। इसके अलावा भी जो नहीं पकड़ा, इनका तो आदत ही बन चुका है कि इस पेपर लीक द्वारा भाई भतीजा और जो भी इनका साथियों है, परिवार के लोग हैं, उनको डॉक्टर कैसे बनाया जाए, इंजीनियर कैसे बनाया जाए। তার জন্য দেখছি ব্রিজ কলাপস, তার জন্য আমরা দেখছি বিভিন্ন জায়গায় রাস্তার মধ্যে ন্যাশনাল হাইওয়ে বড় বড় গর্ত হয়ে যাচ্ছে। আমরা দেখছি মুরগির মতো হাসপাতালগুলোতে লোক মারা যাচ্ছে। আমরা দেখছি কিডনি র্যাকেট ট্রান্সপ্লান্ট করার এই সমস্ত লোক ডক্টর স্টেথোস্কোপ দিয়ে মানুষের কিডনি, হার্ট আর ভাইটাল অর্গানসগুলো ধ্বংস করে দিচ্ছে, মানুষকে মৃত্যুর করে ঠেলে দিচ্ছে। এই সব ভারতীয় জনতা পার্টি কেন্দ্রে সরকার আসার পরে 12 বছর এই জিনিসগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি। কোনো অ্যাকাউন্টেবিলিটি নেই। এই রাহুল গান্ধী কংগ্রেসে আমরা যে লড়াইটা লড়ছি পার্লামেন্টের ভেতরে, রাস্তায় ঘাটে, এই লড়াইটা কিসের? দেশের ছাত্র যুবকদের ভবিষ্যৎকে সুনিশ্চিত করার জন্য। এটা মা বাবার আশা কি? যে আমার ছেলে ডাক্তার হবে, আমার ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হবে, আমার ছেলে আইএস হবে, আমার ছেলে আইপিএস হবে। এখন দেখা যাচ্ছে অতি কষ্ট করে বিভিন্ন জায়গায় কোচিং দিয়ে এদেরকে ওই কম্পিটিটিভ এক্সামে পরীক্ষায় যাতে উত্তীর্ণ হতে পারে প্রচুর অঢেল পয়সা খরচা করছে। কিন্তু দিনের শেষে কি দেখছি? দেখা যাচ্ছে ওই পাইয়ে দেওয়া, নিজের লোকদের পাইয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে এই প্রশ্নপত্রগুলো লিক করছে। এটা কি প্রথমবার? এই যে নিটে এই যে 19 জন, আমার যদি ভুল না বলে থেকে, প্রবলি 19 deaths have taken place in 2026 নিট এক্সামস। রিনিটের মধ্যে করাপশন হয়েছে। তো দায়বদ্ধতা কার? আমাদের দল, আমাদের রাহুল গান্ধী কি চাইছে? এডুকেশন পলিসি, ছাত্র যুবকদের ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলার জন্য, সুন্দর একটা ভবিষ্যৎ নির্মাণ করার জন্য এডুকেশন পলিসিটা। এবং হি ইজ নট অনলি অপোজিং, হি ইজ गिविंग कंस्ट्रक्टिव सजेशंस कि भाई सरकार को ये मामले में सोच रहा है, सरकार को ये करना है, राह दिखा रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। এই যে প্রশ্নপত্র লিক হলো, তার অ্যাকাউন্টেবিলিটি দায়বদ্ধতা কারণ নেই, নেবে না। বিপি ভাই বলেছেন আমাদের কংগ্রেস আমলে অভিযোগ এসছে, মহারাষ্ট্র চিফ মিনিস্টার asked to resign, D. Raja asked to resign, Suresh Kalmadi asked to resign, though they came out clean afterwards, later afterwards.
কিন্তু অভিযোগ এসছে দে ওয়্যার স্যাকড, দে রিজাইন। এখন এই যে 19 জনের মারা গেলেন, এই যে নিট রিনিট 2024 হয়েছে, 26 হয়েছে, দলের তরফ থেকে যদি স্টুডেন্টসরা যদি দাবি তোলে যে ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ চাই, অন্যায়টা কোথায়? লাঠিপেটা করা হচ্ছে ছাত্রদের উপর। আপনারা জানেন রাহুল গান্ধী কিছুক্ষণ আগে he was arrested while agitating in front of the Prime Minister residential area থেকে। কেন না পার্লামেন্ট কে अंदर कुछ बोलने दें? প্রাইম মিনিস্টার যখন উত্থাপন করছে, প্রাইম মিনিস্টার পার্লামেন্ট থেকে ভেগে যাচ্ছে। ये तानाशाही कब तक? স্টুডেন্ট আর সুনহেরা ভবিষ্যতের দিকে এগোবে, উল্টো তাদেরকে লাঠিপেটা করা হচ্ছে, इंजरीज। युवा कांग्रेस के ऊपर लाठीचार्ज, एनएसयूआई के ऊपर लाठीचार्ज, क्यों ये सब क्यों? পুরো ডিক্টেটরশিপ চলছে এই দেশে। যে আমরা মানুষের কাছে এই বার্তাগুলো নিয়ে যেতে চাইছি। আমি ছাত্র যুবকদের কাছে আজকে আমরা এপিল রাখবো, কংগ্রেস দলের তরফ থেকে বেরিয়ে আসুন। চুপটি মেরে হজম, এই যে অত্যাচার অন্যায় আর হজম করবেন না। ডোন্ট ডাইজেস্ট হোয়াট এভার রংস হ্যাপনিং ইন দিস কান্ট্রি নাওয়াডেজ আন্ডার দ্য রেজিম অফ মিস্টার মোদি, অমিত শাহ অ্যান্ড আদার্স। এই লাঠিচার্জের জন্য অমিত শাহ শুড হি নট রিজাইন? শুড হি নট ও দ্য মোরাল রেসপন্সিবল ইন রিজাইন? এটাই কি প্রাপ্য আমার ছাত্র যুবকদের? যে মুড়ি মুরকির মতো লাঠিপেটা করা হবে? एजिटेशन गायर जोरे डंडा के दम पे एजिटेशन को दबाया जाए? ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? ये डिक्टेटरशिप नहीं तो और क्या है? आज কংগ্রেসের তরফ থেকে দেশের প্রত্যেকটি হেডকোয়ার্টারে আজকে প্রেস বার্তার মাধ্যমে এই জিনিসটাই ছাত্র যুবকদের কাছে বলার আমরা চেষ্টা করছি। এই অন্যায় চুপটি মেরে বসে থাকে হজম করবেন না। আমাদের এনএসইউআই যুব কংগ্রেস, they are on the road, they are on the streets. The Congress party under the leadership of Mr. Rahul Gandhi and Mr. Kharge, they are very, very much raising your concern in the floor of the house and outside the house, on the streets. আর আপনারা যাদের ভবিষ্যতে আমরা লড়াইটা করছি, আপনারা বসে থাকার কোনো মানে নেই। আপনারা আগামী দিন আমাদের কর্মসূচি আছে। আগামীকালও আমাদের স্টুডেন্টস হেলথ হোমে 11টার সময় একটা কর্মসূচি আছে। আমি ছাত্রদের কাছে, ছাত্রীদের কাছে আমি অ্যাপিল করব, আসুন এই দেশটাকে বাঁচান। এই দেশ গড়ার লক্ষ্যে কংগ্রেস পার্টি যখন ব্রিটিশকে তাড়ানো হলো, উই স্টার্টেড ফ্রম জিরো। Modi today or tomorrow BJP government, the people will put an end to this government. Again, whosoever is taking over shall have to start from zero. দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত, দেশের সামাজিক যে বন্ধন ফিনিশড, দেশের কৃষ্টি সংস্কৃতি নষ্ট বিনষ্ট। You can never, whatever you are breathing, in the coming days you will be breathing carbon dioxide. Who is fighting to save the Andaman Nicobar Island? Who is fighting of felling down of trees in Chhattisgarh, Assam, Madhya Pradesh? That's the Congress party. Congress party. Who is fighting for the Kisan? Congress party. আমি আপনাদের কাছে অ্যাপিল করব, ছাত্র যুবকদের কাছে, প্লিজ ডোন্ট সিট আইডল,
come out, protest, join the movement launched by Youth Congress and NSY. It is for not only for interest, it is for the interest of the coming generation, it is for the interest of the country. That's all I have to say. Thank you. कांग्रेस हमेशा, जैसे सुदीप दा ने कहा कि चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे अंडमान निकोबार का, जो भी कंट्री के अपलिफ्टमेंट के लिए, जो हमारे बेटरमेंट के लिए होता, हम लोग लड़ते हैं उसको। और ये बहुत दिनों से हम लोगों ने इसमें बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं हम लोग, बिकॉज हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे NSY यूथ कांग्रेस के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो राहुल जी डेफिनेटली लड़ेंगे। देखो अपोजिशन का काम क्या होता, प्रेशर बनाना। तो हम लोग प्रेशर क्रिएट करेंगे कि गवर्नमेंट, 3 किसान का मुद्दा था ना, आखिर वापस लिया ना गवर्नमेंट ने, 1.5 महीने का प्रोग्राम, क्योंकि उनका इतना बड़ा आंदोलन चला किसानों का। और जो आपने CJP की बात की, हमारे पार्टी से पवन खेड़ा ऑलरेडी गए थे, क्योंकि पार्टी ने डिसीजन लिया कि ये बच्चों की लड़ाई है, हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑल्सो आवर फ्यूचर। तो कांग्रेस इज ए लार्ज हार्टेड पार्टी। तो हम लोग अब उन बच्चों के पास तो कोई रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में नहीं है, असेंबलीज में नहीं है, दे डोंट हैव लीडर्स इन डिफरेंट पार्टी। वेरी मच CJP की लड़ाई को आगे ले जाने के लिए कांग्रेस का नहीं, इसको क्लब मत करिए, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी 3 महीने का हम लोग का ऑलरेडी चॉकआउट हुआ है प्रोग्राम कि हम ये करेंगे। तो ये हम लोग का वो है, बट हम लोग कंडेम करते हैं। जैसे कल लाठीचार्ज हुआ, आपने देखा, राहुल जी खुद गए, आज खुद गए, जंतर मंतर गए मिलने, शरद पवार जी गए। तो इट्स लाइक फॉर द कंट्री, फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। We are fighting the Congress party. The Congress party के पहले से ही शुरू किया। has been fighting this battle since long. CGP तो अभी इनका मूवमेंट शुरू हुआ। ऐसा मूवमेंट हमने अन्ना हजारे द्वारा भी देखा। 2014 से पहले अन्ना हजारे का मूवमेंट भी देखा। This is not the first time that Congress is fighting for the youth and the student of this country. It's our agenda कि छात्र को, युवा का भविष्य सुनिश्चित किया जाए। तो we are not opposing the movement launched by the CGP. We are for the students. The legitimate demands of the student, we have been raising it since long. The same demand has been voiced by the so-called CGP. So don't mingle our struggle with that of the CGP. We are complete. What is CGP? We are for the students of this country. We are for the youths of this country. We want to secure the future of the youth and the student of this country. And this battle we are not fighting for this last 15 days or 20 days. We have been fighting it for years after year, decades after decade. We have been fighting for this. It was started from 22nd June. Our mission and vision are very clear. Congress mission and vision is very clear, that we stands firmly behind each and every student of this country. We want to secure the future of the future of the students and youth of this country. That's the vision of the Congress party. राहुल जी, आप सबने आज भी देखा होगा कि किस तरीके से छात्रों की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ने का काम कर रहे हैं। आज 12 साल में 80 बार पेपर लीक हुआ, 80 से भी ज़्यादा, अगर हम कहें 89, 90, 152। और ख़ास करके ऐसे राज्यों में जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है, हर लेवल पे पेपर लीक हो रहा है, चाहे वो पुलिस भर्ती हो, चाहे
लेखपाल की भर्ती हो, चाहे जूनियर ऑफिसर्स की भर्ती हो, बच्चे जो नीट की परीक्षा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कितने बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली, पूरे सालों सालों तैयारी करते हैं, खास करके ऐसे बच्चे जो लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। मैं खुद हॉस्टल में रह के JNU में पढ़ा हूँ, मैं समझ सकता हूँ एक पेरेंट्स के लिए एक बच्चे को हर महीने पैसे भेजना कितना कठिन होता है। और हम जब पूरी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पता चलता है कि हमारा पेपर पहले ही लीक हो चुका है। ये लीक तंत्र में शामिल कौन लोग हैं? 70 साल पहले भी एग्ज़ाम हुए, कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस के बाद की भी सरकारें रहीं, बट कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला कि इतने लार्ज स्केल पे पेपर लीक हो रहा हो और उसके बाद कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रहा है, बच्चे मर रहे हैं तो मरने दो। जो काम सेना का है कि उनको हमारी जो आपका बॉर्डर स्टेट्स है, सुरक्षा का काम, अब एक नया मजाक हो रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा पेपर भेजने का काम हो। सरकार गंभीर नहीं है, इससे ये दिखाता है कि नॉट एट ऑल गवर्नमेंट इज सीरियस। साल दर साल बीतते गया लेकिन कभी भी कोई एक्शन नहीं होता। आई वॉश के लिए एक SIT कमेटी बन जाती है कि थोड़ा पब्लिक का ध्यान हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। 3-4 SITs के पहले भी बन चुकी जब पेपर्स लीक हुए, बट किसी SIT का क्या रिपोर्ट रहा आज तक कुछ पता नहीं चला। पार्लियामेंट में अपोजिशन इंडिया ब्लॉक के सारे लीडर्स टाइम पे क्वेश्चन रेज करते रहते हैं। असेंबली में जहां हम लोग जिन राज्यों में हैं वहाँ पे भी हम उनके बच्चों के लिए उस प्रश्न को उठाते हैं ज़ोर शोर से। लेकिन अब एक ऐसा वक्त आया कि पानी बहुत बह चुका। राहुल जी ने खुद ये तय किया कि अब इस तरीके का खिलवाड़ खास करके यूथ और छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ हम नहीं होने देंगे। आपने देखा उनका कोटा में उन्होंने कार्यक्रम किया, अभी देहरादून में उन्होंने कार्यक्रम किया, लाखों की संख्या में बच्चे आ रहे हैं। बच्चों को ये लग रहा है कि कम से कम हमारी मांगों को जो मेन अपोजिशन पार्टी है, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, जो उसका लीडर अपोजिशन है, वो खुद उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा। कांग्रेस की जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिसको हम वर्किंग कमेटी कहते हैं, जिसमें हमारे सुदीप दा मेंबर हैं, इससे ये शो करता है कि कांग्रेस पार्टी कितनी सीरियस है कि हमारे प्रेसिडेंट, हमारे वर्किंग कमेटी मेंबर्स आज इसी तरीके से हर राज्य में एक कोऑर्डिनेटर, ऑब्जर्वर, जो भी आप कह लीजिए, सारे लोग गए कि हम आप लोगों से बात करें, अपनी बात को पहुंचाएं कि हम बच्चों के साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं, जो उनको एक मानसिक पीड़ा होती है, जो ये हैरेसमेंट है। जिन बच्चों ने सुसाइड कर लिया, उनके माता पिता पे क्या गुजर रहा होगा। कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके सिर्फ एक ही बेटी या एक ही बेटा था, अब उनके घर में कोई नहीं बचा। हमारी जो डिमांड है कि कम से कम आप अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स करिए, मिनिस्टर का रिजिग्नेशन तो लीजिए। यूपीए में बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगा कि माधवराव सिंधिया जी रेल मिनिस्टर थे, एक्सीडेंट हुआ, इस्तीफ़ा दे दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी, रेल दुर्घटना हुई, इस्तीफ़ा दे दिया। यूपीए के दरमियान सुरेश कलमाड़ी, जो बहुत ही हमारे सीनियर लीडर थे, थोड़ी सी उनके ऊपर बात आई कि CWG में शायद कुछ ऐसा है, उनका इस्तीफ़ा ले लिया। राजा हमारे अलायंस पार्टनर थे DMK के, ही वॉज बिहाइंड बार। कनी मोई, शी वॉज बिहाइंड बार। बीजेपी के ही शासनकाल में इंक्वायरीज हुई, इनकी गवर्नमेंट, इनकी एजेंसी, CBI, ED, इनकम टैक्स, सारे लोग बरी हो गए। बट बीजेपी कभी भी
अपनी गलती को मानने का इनका कोई इरादा नहीं है, कहीं पे भी ये अपनी गलती नहीं मानना चाहते। इनको बहुत एक अच्छे तरीके से समझ में आ गया है कि हिंदुस्तान में नफ़रत की राजनीति करो, हिंदू मुस्लिम करो, शमशान कब्रिस्तान की बात करो, ये हमको हेल्प करता है, ये इनकी पॉलिटिक्स को सूट करता है। लेकिन अब ये मोदी जी का अमृत काल मुझे लगता है विष काल से भी ज़्यादा जहरीला हो गया है। मॉब लिंचिंग शायद सुदीप दार हमने कभी नहीं सुना हो। जब से इनकी गवर्नमेंट आई तो हमें ये पता चला कि मॉब लिंचिंग भी कुछ होती है। इस तरीके की जो पॉलिटिक्स को प्राइम मिनिस्टर, बीजेपी, आरएसएस, उनकी जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसी तरीके के पॉलिटिक्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं। उनको न एम्प्लॉयमेंट से लेना देना है कुछ, महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, पेट्रोल में इथेनॉल कितना मिल रहा है। सोचते हैं कि बस धर्म के नाम पे, धर्म के आड़ में छुप जाओ, हमारी जान बच जाएगी। लेकिन अभी आपने देखा होगा सबने कितना बड़ा प्रदर्शन दिल्ली में हो रहा है। राहुल जी आज खुद धरने पे बैठे हुए, कल भी मार्च किया, कल भी पार्लियामेंट में भी पार्लियामेंट नहीं चलने दी। तो इस बार यूनाइटेड अपोजिशन ने, इंडिया ब्लॉक ने और ख़ास करके कांग्रेस, बिकॉज हम लोग लार्जेस्ट पार्टी हैं, एलओपी हमारे हैं, तो कांग्रेस ने इस बात को बहुत ही प्रमुखता से उठाने का काम किया है कि इन बच्चों के आंदोलन को, इन बच्चों की जो शहादत है, जो बच्चे ने अपनी जान गंवाई है, उनको हम इतने आसानी से नहीं छोड़ेंगे। सरकार की जवाबदेही फिक्स करेंगे, मिनिस्टर का रिजिग्नेशन लेके रहेंगे और परीक्षा व्यवस्था को कैसे अच्छी बनाई जाए। बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट कमेटीज़ हैं, उनसे बात करें, कम से कम इस तरीके की घटनाएं ना हो। उसी के सिलसिले में आज हम यहाँ आए। कल हमारा इंटरेक्शन होगा यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ। बाकी मैं सुदीप दा को हैंड ओवर करूँगा, बिकॉज सुदीप दा हमारे सीनियर